بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسوله الكريم خاتم النبيين شفيع المذنبين نبي القاسم محمد يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وكتاب المتين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے چھوٹے سے فکرے کی تلاوت کی ہے. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. یہی وہ دین ہے جو دین حیات کہے جانے کے قابل ہے. یہی وہ دعویٰ ہے کہ اس میں کی دلیل بھی پائی جاتی ہے. اللہ ساری کائنات کا خالق ہے تو تمام مخلوق کا فرض یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں. یہی تو بات ہے جسے وہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ ہماری عبادت کریں. عبادت صرف نماز روزہ حج و زکات کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت ہر اس کا نام ہے جسے پروردگار عالم خوش ہو. ان مجلسوں میں آنا بھی عبادت ہے. فرض ادا بجھانا بھی عبادت ہے. بھی عبادت ہے. فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں سے ان اعمال سے خود ہوتے ہیں جن اعمال کو وہ اپنے تہہ دل سے اپنے مولا اپنے ائمہ کے لیے کرتے ہیں. خدا بھیجے محمد وآل محمد. تمام مخلوق کا مقصد حیات تمام مخلوق کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت پروردگار کرے. لیکن آپ کو محترم حیثیت ہے جن کی تخلیق دوسرے کاموں کے لیے ہوتی ہے. ادب جناب فاطمہ سے رسول خدا نے یہی کہا تھا اے میرے بیٹی فاطمہ تمہارا یہ نام جب ہم نہیں ہوں گے علی نہیں ہوں گے تم نہیں ہوگی تو یہ مقتل کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. تو فاطمہ نے یہی کہا تھا بابا آپ نہیں ہوں گے علی نہیں ہوں گے حسن نہیں ہوں گے میرے نام پر روئے گا کون. تو یہی کہا تھا رسول نے اے بیٹی فاطمہ مغرور نہ ہو. اللہ ایک قوم وعدہ کرے گی جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے. تمہارے بزرگوں کا ماتم کریں گے. جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے. محمد. یہ وہ دور ہے جسے کہا جائے شیعوں کا گولڈن دور چل رہا ہے. اس میں آپ سینہ تان کے لڑائی کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. پوری کائنات میں اگر اس وقت کسی کا سر بلند ہے وہ شیعہ کون ہے. پوری کائنات کی نگاہیں آپ کی طرف ہے. یہی وہ قوم ہے
وآل محمد حیدری یا علی. یہ ادا، یہ شوق، یہ ہمت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ اسی فرض حسین سے ملی ہے. اگر یہ فرض حسین نہ ہوتی تو آج ہم بھی 1927 ممالک کے ساتھ کوئی تماشا دیکھا کرتے اور تم کیا اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور یہی کہتے خاموش رہیے، ڈریے نہیں. ہماری قوم وہ قوم ہے جو ظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. اسی آواز اٹھانے کا نام یہ آزاداری ہے. یہی وہ جلوس ہے جو ظالم کے خلاف اٹھا ہے. یہی وہ علم ہے جو ظالم کے خلاف اٹھا ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو ظالم کے خلاف آواز اٹھا ہے. تاکہ دنیا یہ جان سکے مظلوموں کا حمایت کرنے والا کون ہے، ظالموں کے ساتھ چلنے والا کون ہے. سلام بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناز ہے جس پہ غریبوں کو وہ دولت ہے عطا. ناز ہے جس پر غریبوں کو وہ دولت ہے عطا. نو انسان کے لیے تاج شرافت ہے عطا. بنت شہزادی جنت کی امانت ہے عطا. اور نماز عشق سرور کی اقامت ہے عطا. فرض مجلس کا نہیں اخلاص کا کعبہ ہے یہ. فرض مجلس کا نہیں اخلاص کا کعبہ ہے یہ آزاداری نہیں ہے حضرت زہرا ہے یہ. واہ واہ. جناب زینب، جناب جن کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، جناب زینب نے جو شام کے دربار میں مجلس برپا کی، اس مجلس کی یہ ادنا سی ہمارے آپ کے درمیان جو ہم برپا کرتے ہیں، یہ امام جناب زینب کی بچھائی ہوئی اس آزاداری کی یادگار ہے. اس زینب نے شام میں وہ انقلاب لایا کہ جو شام کی عورتیں جناب زینب کے اوپر پتھر پانی ڈال رہی تھی اور رہائی کے وقت جناب زینب نے اس مجلس کے ہی ذریعے وہ انقلاب لایا ہے. جو عورتیں کالے لباس میں آئی ہیں، گھروں میں روتے ہوئے آئی ہیں، اے شہزادی ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کے یہ اوپر ظلم ڈھایا گیا. یہ دنیا کو بتانے کے لیے جناب زینب نے یہ آزاداری کا اہتمام کیا. اور یہ آزاداری نسل بعد نسل اماموں کے درمیان آتی رہی. یعنی خود مدینے والے کہتے ہیں کہ جب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھتے تھے وآل محمد. گریا کرنے کی آوازیں آتی تھی تو ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ محمد محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. اور یہ آزاداری بڑھتے بڑھتے جب امام رضا علیہ السلام کے دور میں آئی ہے، ہمارے خیال سے ولی عہدی حاصل کرنے کے لیے اور اس عہدے پر اپنے آپ کی منظوری دینے کے لیے شاید ایک مسئلہ یا مسئلہ امام میں بھی رہا ہو، کیونکہ آزاداری کو فروغ دینا تھا.
93 को सब लोगों के सामने बताया हूँ। वो नबी का नवासा आज बगैर हद किए हुए किस लिए उम्मत की सलाह के लिए जा रहा है। अल्लाह ताला ने इमाम मजलूम यही वो हज है जिस हज को रसूल खुदा ने सन 10 हिजरी में अरकान पूरा किया है और पूरे मजमे को अपने साथ लेकर चले हैं। एक मजमा मौका आता है जिसे गदीर खुद कहा जाता है और तपता हुआ सहरा है। वहाँ पर आयत आती है या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह ताला ने इमाम मजलूम जिस रसूल को कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, तुम्हारे मन से तुमको पुकार रहा है, अब तुमको वो पैगाम पहुंचाना है। अगर नहीं पहुंचा उन्हें कुछ नहीं पहुंचाया। यानी अगर विलायत तालीम का ऐलान नहीं किया तो ना नमाज मुकम्मल है, ना रोजा मुकम्मल है, ना सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरा इत्मीनान दिया गया है और रसूल ने कहा है जो आगे चले गए हैं उनको पीछे वापस बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए। और पूरे जब लोग इकट्ठा हो गए हैं तो रसूल की निगाहें माजी पर हैं, रसूल की निगाहें वो हक पर हैं। उन्होंने ये देखते हुए भगवानों के कदमों को इकट्ठा किया है ताकि उसके अपनी भाई न बने। सलाह दीजिए मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और दूसरे वो वक्त मुय्यन किया है, न सुबह थी न शाम थी बल्कि चिलचिलाती हुई दोपहर थी ताकि कल आने वाली नस्लें ये न कह सके रसूल ने क्या कहा था। हम तो सो गए थे, हम तो नमाज पढ़ रहे थे, न नमाज पढ़ था, न सोने का चिलचिलाती हुई धूप में सबकी आंखें खुली हुई थी। रसूल ने एक लंबा खुतबा इरशाद फरमाया और ये फरमाया मैं तुम्हारी नस्लों पर तुमसे ज्यादा हाकिम हूं कि नहीं। सबने कहा हाँ रसूल अल्लाह। जब इकरार करा लिया अली को बुलाया, ए मेरे भाई आओ। अली को हाथों में लिया और बुलंद करके फरमाया मन तुम तो मौला हो, दबा दीजिए मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली। यानी रसूल सिर्फ हदीस बयान करके कह सकते थे कि मन तुम तो मौला। खाने का माजरा क्या था ताकि आने वाली नस्लें ये कह न सके हम तो आंखों से अंधे थे, हमने देखा नहीं। जो अंधे थे वो सुन ले, जो बहरे थे वो आंखों से देख ले। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यही नहीं किया बल्कि खैमा लगाया है और कहा है सबके ऊपर फर्ज है कि वाके अली के हाथों को बैत है, बगैर बैत किए हुए किसी को नहीं जाना है। 3 दिन लग गए, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ हे रसूलुल्लाह, आयत तो उसमें कह रही है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। अरे ये तो 1.25 लाख हाजी हैं, इसमें कहाँ से शर वाले हैं। आगे से इन्होंने हज किया है, आगे साथ नमाजें पढ़ी हैं तो रसूल बताएंगे अरे सब हाजी को हाजी मत मानना, उसी हाजी को हाजी मानना जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाकी
उसने तो अपना दिमाग लगाया, क्योंकि रसूल के लिए कहा गया है ये रहमतुल लिल आलमीन है। उसने ये सोचा जब रहमतुल लिल आलमीन यहाँ है तो यहाँ अज़ाब नहीं आएगा। वाह 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 अरे वाह 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 लेकिन अज़ाब आके ये बता रहा है कि जो दुश्मन अली होगा चाहे रसूल की गोद में रहेगा। हदीस का वाक़या ये बताता है कि रसूल के पहलू में दफन होने से निजात नहीं मिली, बल्कि अज़ाब आके वाह 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 अज़ाब में बराम करता है। वाह 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 صلي على محمد وآل محمد मजलूम करबला अगर जंग के लिए निकलते तो मजलूम करबला के साथ मदीने से 250 से ऊपर का मजमा था, लेकिन मजलूम करबला ने यही कहा है कि मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूँ, जंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। वरना कोई जंग के लिए अगर जाता तो उसके सिपाही 6 साल का बच्चा होता है, उसका सिपाही 90 साल का बूढ़ा होता है। वाह 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 अभी कुछ देर पहले आप लोग नमाज से फारिग हुए हैं और उसमें आपने तस्बीह ज़हरा पढ़ी है 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह। इसका मकसद क्या है? ये कब से शुरू हुआ? अल्लाह ताला ने मजलूम जब ज़ोहरा सितारा आसमान से दरे ज़हरा की जानिब चला है तो अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर कहते हुए सितारा छोटा होता हुआ चला गया और 34वीं बार वो दरे ज़हरा पर जब पहुंचा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सजदा करके जब वापस हो रहा है शुक्रिल्लाह शुक्रिल्लाह और अपने महल में जाके बता रहा है हम सही और सलामत गए थे, सही और सलामत आए हैं। अल्लाह भेजिए मोहम्मद वाले اللهم صل على محمد وآل محمد ये अहले बैत वो हस्तियां हैं जिनका ताल्लुक वहां से मिला हुआ है। दुनिया में आते हुए ज़हरा का तो देखा, अरे कोई ऐसी भी चीज हो जो यहाँ से वहां जाए। अरे खैबर का मार्का है, खैबर का दरवाजा 34 लोगों से जो हिलने से नहीं हिलता, तो उंगलियों से अली ने खैबर को उठाया है और इतनी ऊंचाई पे फेंका है कि तले खैबर पटावा नजर आ रहा था। वाह 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 देख ली कितना बड़ा दरवाजा, अरे तारा नजर आ, फिर उसी तारे को जब वो नीचे उतारा है दरवाजे की शक्ल में, अली ने दोनों उंगलियों पर फिर उस दरवाजे को रोका है और रोक के कंधा के ऊपर रखा है। तो 39 दिन भागने वाली फौजें वाह 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 उनसे इस तरीके से दौड़ी जैसे मोहब्बत माले गनीमत का हुजूर न है। जो मुसलमान वादा करते थे एक दिन की रोटी नहीं पाते थे, अली की बदौलत खैबर को माले गनीमत से इतने माले माल हुए कि आज दुनिया उन्हें गनी कहती है। सलाम कीजिए मोहम्मद। वाह 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 जब
اسلام میں 4 مقامات پر مرد کے لائق ہونے کا ذکر ہوتا ہے، یعنی غذا کے توازن کے بگڑ جانے کا نام ہی تو مرض ہے، جو ڈاکٹر افراد سمجھ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آدمی کا کھان پین ڈسٹرب ہوتا ہے تبھی اس کو مرض لاحق ہوتا ہے، لیکن ان معصوم ہستیوں کے درمیان یہ گڑبڑی کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ اس کے بعد کے واقعات سے بات ثابت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ تھی۔ ایک وہ مسئلہ ہے کہ جب رسول کریم کو سوگ محسوس ہوتا ہے تو بیٹی کے گھر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے میری بیٹی مجھے سوگ محسوس ہو رہا ہے۔ جناب فاطمہ اس کے علاج کے لیے کیا لاتی ہیں؟ چادر یمانی لاتی ہیں، اور چادر یمانی کے اندر وہ 500 معصومین آتے ہیں جن کا نور زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ نور اتنا مستقیم نور تھا کہ جبریل کی آنکھیں بھی چکاچوند ہو گئی۔ حدیث کیسا پڑھتا ہے جس میں جبریل نے پوچھا، اے میرے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی نے یہی کہا ہے، رسول خدا نے یہی کہا، ہم فاطمہ و ابوہا و آلوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، یعنی اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو فاطمہ سے پہچاننا ہوگا، باقی دنیا یہ سمجھے اہل بیت کیسی حیثیت والے ہیں۔ سوال بھیجیے محمد والے، اللہم صلی محمد وآل محمد۔ کیا یہ کہوں کہ اگر رسول کو وہ محسوس نہ ہوا ہوتا تو یہ چادر کا گھر نہ بنتا، اگر چادر کا گھر نہ بنتا تو آئے تبھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا کو نزول کی جگہ نہ ملتی، واہ واہ واہ۔ اور اگر فاطمہ الزہرا بیمار نہ پڑتی، مولا کائنات سے انا کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو شاید میں جنت کو آنے کا راستہ نہ ملتا۔ واہ واہ واہ۔ مولا متقیان جنگ خیبر کے درمیان کھوجے جا رہے ہیں، علی کہاں ہے؟ 39 دن ہو گئے، علم لے کر لوگ جاتے رہے، باہر کے آتے رہے، فتح نہ ہوئی، علی کہاں ہے؟ پتہ لگا علی مدینے میں ہے، علی کی آنکھوں میں درد ہے، علی کو معجزے کے ذریعے بلایا رسول نے، اور آپ نے یہی کہا تھا میں کرم اس کو دوں گا جو جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، پربت حملہ کرنے والا ہوگا۔ اب لوگ پریشان ہیں، کاش یہ علم ہم کو مل جاتا۔ پوری رات فوج رسول جو خیبر کی طرف جانی تھی اپنے اپنے پنچوں پر کھڑی ہو کے انتظار کر رہی ہے کہ علم کس کو طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے شاہ نے خود کہا ہو کے مایوس بدعت کا فتویٰ دیا، تھک گئے جب علم مانگنے مولا متقیان آتے ہیں اور رسول نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کر ان کو جنت کی طرف بھیجا ہے۔ رسول خود چاہ رہے تھے کہ علی کو پہلے ہی دن بھیج دیا جائے، لیکن کل کی آنے والی قومیں یہی کہتی کہ رسول نے تو پہلے ہی دن علی کو بھیج دیا تھا، جس کا اعتراض شبلی کالج میں علامہ نعمانی کی کتاب الفاروق میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ 39 دن اصحاب کرام گئے، بڑی گھماسان کی جنگ ہوئی، لیکن فتح تو علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں پہ لکھی تھی، اس لیے فتح نہیں ہوئی۔ 40ویں دن علی کرم اللہ وجہ گئے اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ وہ میگزین الفاروق میرے پاس بھی آتی تھی، میں نے اس میں جواب لکھ کے بھیجا۔ 39 دن آپ نے کہا بڑی گھماسان کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں کسی مرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کتنے لوگ مارے گئے، واہ 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 واہ۔ یہ واہ 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 واہ۔ کتنے کو معلومات ہوئی تھی، یا پھولوں کی چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ محمد وآل محمد۔ دریا محمد وآل محمد۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری میگزین کو بھیجنا بند کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ میگزین کسی چیز کا اس کے بعد قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ علی کا نام علم کے امیدواروں میں نہ ہو، بلکہ قدرت یہ چاہ رہی تھی علی کو بلایا جائے، علی کو ہاتھوں میں علم دیا جائے، تاکہ یہ دنیا جان لے علی کو فاتح ہونے کا شوق نہیں ہے، بلکہ اسلام کی فتح علی کے
की नजर न मानी जाती तो शायद सूर्य हलका लोहे महफूज में रह जाता, उसको आगे की जगह न मिलती। अल्लाह इमाम मजलूम हुसैन वाजिब शख्सियत का नाम है। हमसे सवाल किया जाता है कि आप हर साल मुहर्रम क्यों मनाते हैं? हमारे यहाँ के घर में कोई हादसा पेश आता है तो 40वां छमाही सालाना 1 साल 2 साल पर्ची होने के बाद हमारा दिल मुतमईन हो जाता है और हमारे गम पर खाक बढ़ जाती है, जिससे हमें धीरे धीरे यादें शुरू रह जाती हैं। लेकिन हुसैन का गम 14 साल हो गए और हुसैन का गम जब बयान किया जाता है ताज़ा हो जाता है। ये क्यों वजह है? अभी हमने एक मजलिस की, दूसरी मजलिस की, तीसरी में आए हैं, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही, रूह नहीं जवाब दे रहा, दिल नहीं जवाब दे रहा। ये बात है कि ना जब तक खाली जान में जान है, ये मजलिस होती रहेगी और हम मजलिस करते रहेंगे। इमाम हुसैन का ये गम एक मौजज़ा है। इमाम हुसैन कि जो ये हम मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? ताकि फिर कोई जालिम किसी के ऊपर जुल्म न कर सके, कोई मजलूम अपने हक के ऊपर न मान सके। हम हर साल 47 में देश आजाद हुआ, हम 15 अगस्त मनाते हैं। 50 में संविधान बना, हम गणतंत्र दिवस मनाते। क्यों हर साल मनाते हैं? 50 साल ऊपर हो गए। लेकिन शायद वह कहता है शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी नशा होगा। जो वतन पे मरे उसका तो हर साल प्रोग्राम किया जाए, मनाया जाए। जो पूरी इंसानियत के लिए उस हुसैन के लिए अगर हम मना रहे हैं तो एतराज क्यों किया जा रहा है? हुसैन ने मैदान करबला में जीतने के लिए अपने आप का एहतराम नहीं किया, वरना सबे आंसू जब इमाम सैयद सज्जाद ने कहा ए बाबा एक तरफ से मैं हमला करूं, एक तरफ से भैया पास हमला करें तो कुछ ही देरों में हम इस बात का तहवाला कर देंगे। इमाम मजलूम ने दुआ की, हे बारेला अली हुसैन को मैं सवाल कैसे करता हूं? इमाम सैयद सज्जाद को उसी वक्त से बेहोशी तारी हो गई है। इमाम सैयद सज्जाद अपने भाई अपने फजल अब्बास के ऊपर इतना भरोसा है। इधर हम अपने फजल अब्बास के रहते हुए शायद ने कहा, शेख कह दिया तो शायद ने कि जनाबे फजल अब्बास की मदद में इमाम हुसैन थे। तो फिर शायद ने समझा कि हमने कुछ गलत कह दिया। इमाम वक्त हो और गैर मासूम की हिरासत में हो, गैर मासूम उसकी हिफाजत करा कैसे मुमकिन होगा? मैं शेर अब नहीं कहूँगा। मौला ने काम जब तक मेरा बाप जिंदा था ये अहले हरम बड़े इत्मीनान से सोते थे। ये बच्चों की आस थी कि अभी हमें पानी पिलाने वाला मौजूद है, लेकिन जब ये अब्बास न रहे तो सबकी आशा टूट गई। आज 4 मुहर्रम है। 4 मुहर्रम के कई मुनासबत है। तो ये है कि शरह काजी ने इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा आज ही 4 मुहर्रम को दिया था, जिसको सुन के कूफा और शाम के 18,000 मुफ्तियों ने भी इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दिया। यानी मुफ्ती क्या फतवा दे, जिस पर कभी भी यकीन मत करिएगा। इन मुफ्तियों ने सजग बिजली में हुसैन के कत्ल का फतवा दिया। जिस नबी के घर से दिन चला हो, जिस नबी के घर से उम्मत मुसलमान फरोग पाई हो, उसी नबी के नवासे को बागी कहा था। इमाम मजलूम करबला की मासूमियत पर जो सनद है वो जनाबे अली असगर। जनाबे अली असगर अगर शहीद न हुए होते तो शायद दुनिया के बहुत से लोग ये कह देते कि हुसैन ने गलत इक़दाम उठाया था। इमाम
मजलूम करबला इसीलिए तो जनाब अली असगर को मदीने से लाए थे। जब जनाब अली असगर जनाब रबाब की बेटे जनाब अली असगर माँ की आगोश में है और माँ की आगोश से जनाब सोहरा ने उनको लिया है, क्योंकि जनाब सोहरा की शर्त जनाब फातिमा ज़हरा से बनती थी। इमाम हुसैन नहीं चाहे मेरी शहादत के बाद मेरी माँ की ज़मीन कलमे आपके मेरे बकलों खाने जनाबे सोहरा आगे बढ़ी है। मैंने से जनाबे अली असगर को लिया है और जनाबे अली असगर भी जनाबे सोहरा की आगोश में लिपट गए। सभी बीवियों ने बारी बारी जनाबे अली असगर को लेना चाहा है, लेकिन जनाबे अली असगर नहीं आ रहे हैं। हुसैन ने कभी माजरा देखा, आए हैं माँ की बहन की आगोश में देखा अली असगर है, आए हैं माँ ने तो छूट के कहा है अली असगर हुमक के मामे मजलूम में क्योंकि उसी वक्त अभी किसी को नहीं पता कि इमाम हुसैन ने क्या किया। काफिला चला तो मुहर्रम को ज़मीन करबला को पहुंचा। इमाम हुसैन ने 8 किलोमीटर का इलाका अपने बेटे अली अकबर के नाम खरीदा। यह जब जमीन खरीदी गई है, सब लोग जमीन खरीदते हैं अपने बच्चों को आबाद होने के लिए। हुसैन जमीन खरीद बच्चों को अशोक की सुनाई है जिनके बाद दूसरे असहाबे हुसैन शहीद हुए हैं। लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को सबसे बाद में पूछा। सबसे पहले अपने असहाब को भेजा है और उसमें भी सबसे पहले उनको भेजा है, जो कि से वो समाप में अभी आए हुए हैं और पहले जाए। लेकिन जब जनाबे अली अकबर रुखसत होने वाले थे और उस वक्त इमाम मजलूम करबला से ही कहा है कि बाबा प्यास सता रही है और एक बार जंग करके वापस भी आ चुके हैं, बाबा कुछ पानी मिल जाता तो ये में ऐसा पता चलाता गली का तोता कैसे जंग करता है। जनाब मजलूम ने यही कहा बेटा अपने मुंह को खोलो, मेरी जुबान को अपने ध्यान में ले लो। जब अली अकबर ने बाप की जुबान को अपने ध्यान में लिया है खींच लिया, ए बाबा आपकी जुबान तभी जाना करते पड़े। इसका मतलब था करबला में जो जख्मी दे जिंदा था वो उतनी देर मुसीबत में था, इसलिए हुसैन ने सबसे पहले उनको भेजा है ताकि मेहमान को कम मुसीबत झेलनी पड़े। इसके बाद अपने अल्लाह को भेजा है, सबसे आखिर में अपने कमरे बनी हाशिम को भेजा, अली अकबर को भेजा, अरे सबसे छोटा सिपाही सबसे आखिर में जा रहा, क्योंकि
आगे बढ़ के पानी पिला दो। हे अल्लाह ताला ने मोमिन मजलूम करबला, ये 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर है, जिसमें आपके वहाँ बाड़े में बैठने की माकूल इंतजाम है, कूलर भी लगा हुआ है, पानी की सबील है, फिर भी प्यास लगती है। वो है जिसका 6 महीने का बच्चा, महीने के बराबर, जिसका हाय 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 7 डिग्री था, अगर ज्यादा गिरता था वो भी बन जाता था। अली असगर को उस जमीने के बराबर हुसैन मैंने पाया है। जब देखा कोई साल आगे न बढ़ा, अली असगर को उठा लिया। वो नहीं फरमाया, हे मेरे लाल, तुम भी तो हुज्जत खुदा हो, तुम भी कुछ सुनाओ। शायर कहता है, फिर बेज़ुबान के चूमे झुका के सर रोकर कहा, जो कहना था वो कह चुका मैं। बाकी रही न बात कोई, है मेरे सर सूखी जुबान, तुम भी दिखा दो निकाल कर मेरी जुबान। लबों पे जो सुरूर आएंगे अल्लाह के बंदा किसी को न 6 महीने का प्यारा बच्चा, ये कौशल का बच्चा, कितना मजबूर है, कितना अलीम है। सालों ने देखा, खोल कर बदला हुआ है, फुरमला को आवाज दी, कहता है कलाम हुसैन। अरे हुसैन के कलाम को कथा करते, अरे फुरमला आगे बढ़ा, 3 बाल का तीर, अरे टूटा से गला करना, अरे खबर की लिखता है, अरे अली असगर के वजन से ज्यादा तीर का वजन था। अरे तीर चला है बेटा, उस तीर को रोकने वाला है। इस साले में सोच रहा था एक ही तीर से बाप और बेटे का काम तमाम हो जाए, लेकिन अली के पोते ने घुमा कर तीर का रुख मोड़ दिया। इमाम मजलूम करबला ने बहते हुए खून को हाथों में लिया है, आसमान की जानिब फेंकना चाहा। आवाज आई, है हुसैन, इस खूने नाहक को अगर मेरी तरफ फेंकेंगे तो ताक़यामत एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। जमीन की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आई, ताक़यामत एक कतरा नहीं उगेगा। हे अली असगर, ये पानी, ये दाना कायनात का आपका तोहफा है। हुसैन ने खूने अली असगर लिया, इनका आसमां तो है, राज़ी ज़मीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना नहीं। हुसैन ने खूने अली असगर को अपने जेब में बदला। इमाम मजलूम करबला आगे बेकसी इमाम कहने की इजाजत बन रहे हैं। इमाम के दामन से अली असगर को छिपाए हुए हैं, लेकिन हुसैन जिस अली अकबर की लाश को एक ही बार क़यामत पहुंचाए, अब्बास क़याम को एक ही बार क़यामत पहुंचाए, हुसैन की जवाब दे रही है। अरे 6 महीने के बच्चे को माँ देखेगी तो तड़प जाएगी, अरे माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? माँ ने पानी के लिए भेजा था, देखा तो शहीद हो गया। हुसैन 7 मरतबा कयाम की तरफ बढ़ते हैं, फिर हिम्मत जवाब देती है, फिर पीछे जाते हैं। कलाम अकबर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न पे कताई वो तस्लीम कर ले हमने, पता नहीं किस हिम्मत के साथ हुसैन करे खैमा चढ़ाए। आवाज दी, हे रुबा, अपने लाल को ले जाओ। रुबा के आने से पहले सकीना बोल दे, हे बाबा, मेरे भैया को पानी पिला रहे। हुसैन सर झुका, दामन हटाते, क्या देखा? अली असगर का गला तीरे से बातें छिदा हुआ। तभी माँ भी आ जा रही है और माँ ने आगे कहा देखा, अरे बेटा तो शहीद हो चुका। हे बाबा, तुमने इस जालिमों के दरमियान अपने लाल को क्यों भेजा? जिस जालिमों ने अकबर के सीने में
तमाम इमाम मजलूम करबला ये वाहिद जनाजा है जिसे इमाम हुसैन ने दफन किया। नहीं तो तमाम लाशें इमाम मकतब में तमाम समझ रहे थे जब लश्करे आशूर हमारी लाशें पामाल की जाएंगी देश का घोड़ों के कातों को न सह सकेगा। हुसैन ने अली असगर के जनाजे को दफन किया है। तारीख ये कहती थी कि इमाम मजलूम करबला अरे जब तलवार से कब्र खोदे हैं तो जनाजे अली असगर के जनाजे को जब कब्र में उतारना चाहते थे फिर धरती की तपिश देख के जनाबे मजलूम करबला तारीख देती है कि इमाम ने अपना दूसरी खाली किया है और अली असगर को सुबह देखा किया है। अरे इसी असना में अरे सगरा का कासिद आया है और तेरे खैमा की जाने छिपी हुई निगाहों से देख रहा है। अरे इमाम ने पूछा क्या देख रहे हो? अरे कहा अरे मैं मुझसे महीने के अली असगर को देख रहा हूँ जिसे उसका ने कहा था दिल भाई तुम्हें नजर आए उसे कलेजे से लगाना। अरे बाबे मजलूम में करवा देगा एक आसिफ सोरा तुमने आने में देख दी। अरे मैं करके आ रहा हाय 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 हाय